السلام علیکم، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں جوید یاری۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور اس خبر کو آپ تک پہنچاتے ہیں کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 2000 افراد جاں بحق ہوئے۔ خبر ایجنسی ایران حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شرپسندوں نے نشانہ بنایا۔ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے جنیوا میں ایک کانفرنس کے دوران کہا کہ رپورٹس کے مطابق سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اندازہ اقوام متحدہ کے اپنے زمینی ذرائع سے حاصل ہوا ہے اور یہ قابل اعتماد ذرائع ہیں۔ اس سے قبل ایک انسانی حقوق گروپ نے کہا تھا کہ تقریباً 650 مظاہرین ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ ایرانی حکام سے مظاہرین کا قتل عام بند ہونے تک ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ ایرانی محب وطن احتجاج جاری رکھیں، اپنے اداروں کا کنٹرول حاصل کر لیں، ایرانی مظاہرین کو مدد پہنچنے والی ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کے العدید ایئر بیس پر اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اتوار کی رات العدید بیس سے KC-135 ایئر ریفیولنگ ٹینکرز اور B-52 اسٹریٹجک بمبار سمیت کئی امریکی جنگی طیارے پرواز کر گئے۔ رپورٹ کے مطابق قطر میں واقع العدید ایئر بیس ایران کی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملے پر ضرورت پڑنے پر فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے واضح کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتکاری کو اولین ترجیح دیتے رہے ہیں، تاہم اگر وہ ضروری سمجھیں تو فوجی طاقت کے استعمال سے ہچکچائیں گے نہیں، اور اس حقیقت سے ایرانی حکومت بخوبی آگاہ ہے۔ ٹرمپ آئندہ کیا قدم اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے۔ ایرانی حکومت کے عوامی اور نجی سطح پر دیے جانے والے پیغامات میں واضح تضاد ہے۔ ایرانی حکومت عوامی طور پر کچھ اور موقف اختیار کرتی ہے جبکہ نجی طور پر امریکہ کو مختلف پیغامات بھیج رہی ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ہے کہ ہم ایرانی حکومت کے آخری دن دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی حکومت صرف تشدد کے ذریعے اقتدار برقرار رکھتی ہے تو یہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ عوام اب اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب فن لینڈ کی وزیر خارجہ الینا والتونن نے کہا کہ ایران میں انٹرنیٹ کی بندش اور مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں لکھا کہ ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا تاکہ وہ اپنے خاموش قتل اور جبر کو انجام دے سکے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم ایرانی عوام اس ملک کی خواتین اور مردوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لینن نے کہا کہ یورپی یونین ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کو دبانے کے ذمہ دار حکام پر مزید پابندیاں تجویز کرے گا۔ انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں ایران میں مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد کو خوفناک قرار دیا اور طاقت کے حد سے زیادہ استعمال اور آزادی پر مسلسل پابندیوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے عوام کے ساتھ ہیں جو اپنی آزادی کے لیے بہادری سے مارچ کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے ایران کی حکومت کو جابرانہ حکومت قرار دیتے ہوئے ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا ایکس پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ چند ہفتوں میں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ ایک جابرانہ حکومت ہے جو اقتدار کو برقرار رکھنے کی کوشش میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ دنیا نہ صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ نے اپنے عوام کا قتل عام بند کریں، بلکہ ایسی حکومت کسی بھی اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں رکھتی۔ مظاہرین کا قتل، طاقت کا استعمال اور غیر قانونی گرفتاریاں فوری بند ہونی چاہیے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے ایرانی حکومت کے اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہم ایرانی عوام کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में खबरदार किया कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। यह हुक्म हतमी है और इस इकदाम का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमरीका के साथ होने वाली हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। और अमेरिका की जानिब से ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर नई पाबंदियां आयद करने पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना था कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता, दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। तर्जुमान के मुताबिक चीन किसी भी गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदियों के नाजायज़ इस्तेमाल की सख्त मुखालिफत करता है। अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया। महमूद खान अचकज़ई ही अपोजिशन लीडर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से 1 घंटे की मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कल तक दस्तखत होने की तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात को हमारे अपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा। जुमे के दिन कौमी असम्बली इजलास में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगी। देखो एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन थे, है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक के, और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी नहीं है जो उस चीज को सेकंड करे या दोबारा कोई करे। दैट्स इट। हमारा एक ही है और एक ही के हमने जमा कर लिए, और आज जो 3 बजे तक था सिर्फ एक बंदे के नॉमिनेशन फॉर्म आ गए। और अच्छा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला KP को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया, लेकिन सुहेल आफरीदी ने खबरों में आने के लिए इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करे। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों के बजाय रियासत पाकिस्तान को सपोर्ट करे। जो पाकिस्तान और उसके आइन को नहीं मानते उनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। सुहेल आफरीदी को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत चाहिए तो सिक्योरिटी इदारों से ब्रीफिंग ले। इंतशारी जमात मुल्क में अमन के खिलाफ रोज नए नए शोशे छोड़ रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी साबित हो गया कि सुहेल आफरीदी 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे। साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। CM साहब के साथ उन्होंने सबसे पहले रब्ता किया, उनकी टीम के साथ उनके शेड्यूल लिया, उनके लिए तमाम जो है वो इंतज़ामात किए, और यहाँ से बयान आया कि जी हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत की ये जिम्मेवारी थी कि उनको प्रोटोकॉल शायद न देते, लेकिन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी थी। तो हम हमेशा कहते हैं हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कहते, हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। वहाँ पर सिंध हुकूमत के नुमाइंदों ने वज़ीर आला साहब और उसकी टीम को रिसीव किया। उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक जो उनके प्रोग्रामात थे उनके साथ उनके सारे शेड्यूल के मुताबिक चल रहे थे। अचानक कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि हैदराबाद में ख़ास कर हुआ। आप आके कहते हैं जी हमें अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद दें। अफगानिस्तान के खिलाफ आपको क्या शवाहिद दें? आप आकर अपने IG साहब के साथ अपनी टीम के साथ बैठे, उनसे पूछें कि अफगानिस्तान आप आएँ, आप रिक्वेस्ट करें। आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर आप सूबाई हुकूमत रिक्वेस्ट करेगी तो शायद आपको ब्रीफिंग आपके इंटेलिजेंस इदारे भी दें और आपको बताएं कि जी हमारे पास क्या क्या शवाहिद मौजूद हैं अफगानिस्तान के ख़िलाफ़। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, TTP को स्पेस दें। क्यों TTP को हम स्पेस दें? जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, आप कहते हैं उनके साथ डायलॉग्स करें। ये जो चीज़ें हो रही हैं, चलो हम कहते हैं हम आपकी बात मान लेते हैं, तो फिर हमें हुकूमत बता दे कि हमारे खिलाफ दहशतगर्दी, हमारे पुलिस वालों को कौन मार रहा है। आज हमारे सूबे को अमन चाहिए, आज हमारे सूबे को तरक्की चाहिए, आज हमारे सूबे को खुशहाली चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनको बैठकर, हमारी सूबे हुकूमत को बैठकर, अपनी पार्टी में बैठकर, अपोजिशन के साथ बैठकर, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हम अपने सूबे के अमन के लिए बात करें। हम वफाक के साथ अपने पैसों की बात करें, हम तरक्याती फंड्स की बात करें, हम बाकी करें, ताकि हम सूबे में काम कर सकें। अगर आप यही गालम गलोच, यही इंतशार, यही चीज़ें शुरू करेंगे तो अब मुझे बताएं कि आप कैसे यहाँ पर अमन ला सकेंगे।
PTI कराची में सानहा 9 मई जैसा एक और फसाद चाहती थी। हमने वजीर आला को जलसे की इजाजत दी। 5 मिनट में बयान आ गया कि ग्राउंड में जलसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बरस पड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने वजीर आला KP को प्रोटोकॉल दिया, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद से वापसी पर रास्ता बंद किया गया। सुहेल आफरीदी कमिटमेंट के बावजूद डिस्ट्रिक्ट साउथ गए। झूठ बोला गया कि जिन्ना ग्राउंड में ताले लगे हैं, वहां तो कोई गेट ही नहीं। हमने उन्हें वो इज्जत दी जिसके काबिल नहीं थे। 8 फरवरी को कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करने देंगे। PTI का कौमी धारे में रहकर सियासत करने का मूड नहीं। इन तमाम चीजों का नाजायज फायदा लिया गया और फिर एक दफा एक खतरनाक कोशिश की गई। वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, में सिर्फ इंतशार, सिर्फ जो है वो मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया। अनफॉर्चुनेटली ये तो हुकूमत सिंध ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूमत ने कहा कि हम अमन अमान को किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे और कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट करें। आप देखें इन सारी चीज़ों के बाद ना PTI की सूबाई क़यादत में कोई पर्चा काटा गया कोई चीज़ की, ना उन मौसूफ जिन्होंने कमिटमेंट्स की थी हुकूमत के साथ, वर्बल कमिटमेंट्स थी कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, जो आपका प्लानिंग है उस पर करेंगे। आप अपने, और उस जलसे में भी आपने अपने मर्जी से अपने रूट्स लिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सूबे में अमन अमान और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। स्पीकर अयाज सादिक ने बलूचिस्तान में ख़वातीन और नौजवानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की पर खुसूसी जोर दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के मनसूबों का फौरी और मौसर नफाज़ वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अयाज सादिक ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई तरक्की की ज़मानत है। वफ़द ने सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन आइन का तकाजा है और हुकूमत को हर सूरत करवाना होंगे। सरगोधा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कब तक इकट्ठी रह सकती हैं, ये बस गिरते पड़ते आपस में चल रहे हैं। उनका कहना था कि PTI हुकूमत के सामने आए या ना आए, जमीयत उलमा इस्लाम जरूर सामने आएगी। इलेक्शन आइन का तकाजा है, किसी वक्त तो करने ही होंगे, गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। PTI सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। GHQ रावलपिंडी में NPAC की DG ISPR से मुलाकात हुई। उन्होंने कौमी बयानिए के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाक अफ़वाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। NPAC ने कहा कि फितनतुल खवारिज और अफ़गान तालिबान की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DG ISPR का कहना था कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरत है। फितनतुल खवारिज TTP और TTA के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई और मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तौसीक पर गौर किया गया। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तौसीक पर गौर करने के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील 9 के बारे में भी फैसला किया गया। एलामी के मुताबिक जस्टिस मीरान मोहम्मद, जस्टिस मिस तस्नीम सुल्ताना को मुस्तकिल किया गया। जस्टिस रियाजत अली सहर, मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस अब्दुल हमीद भरगी, जस्टिस जान अली जुनेजो, जस्टिस निसार अहमद भंबोरो, जस्टिस अली हैदर अड्डा, जस्टिस मोहम्मद उस्मान अली हादी, जस्टिस मोहम्मद जाफर रजा भी मुस्तकिल शामिल होने वालों में शामिल हैं। जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी और जस्टिस सैयद फयाजुल हुसैन शाह एडिशनल जजेस। हाई कोर्ट ऑफ सिंध को 6 माह की तौसीक का फैसला किया गया है।
कमीशन ने आइंदा बेंचों की मुद्दत में 6 माह की तौसीह की। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस मोहम्मद हसन आइनी बेंच के लिए नामजद, जस्टिस मोहम्मद उस्मान अली हादी, जस्टिस अमजद अली नामजद किए गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी अहमद बिन लाहज अल फलासी की सरबराही में मुत्तहदा अरब अमारात के वफ्द ने मुलाकात की। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से मुआहदे पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि इस नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट मनसूबे के तहत कराची से किया जाएगा। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतालिका क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगी, जिसके बाद मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचने पर उन्हें इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस निज़ाम के तहत मुसाफिर डोमेस्टिक सफ़र की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। यूएई के वफ़द ने इस इक़दाम को दोनों ममालिक के आवाम के लिए मुफीद करार देते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक से सऊदी अरब के वज़ीर सनत व मादनी वसाइल बंदर इब्राहिम अल खलीफ ने मुलाकात की। इस मौके पर मादनियात और कानकनी के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वज़ीर मादनियात का कहना था कि सऊदी अरब अपनी इल्मी और तकनीकी महारत के ज़रिए पाकिस्तान के मादनी शोबे की तरक्की में सपोर्ट फराहम करेगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ठटिया बेल्ट में बेपनाह मादनी सलाहियत है, रेकोडिंग जिसका एक छोटा सा हिस्सा है। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि फोरम में पाकिस्तान की मौजूदगी सऊदीया पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरे में दिफाई ताउन से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर दिफा ने मराकशी हुकूमत के सरबराह के मातहत कौमी दिफाई इंतजामिया के इंचार्ज वज़ीर मुमलिकत अब्दुल लतीफ़ लोदेही से मुलाकात भी की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दिफा ने मुमलिकत मराकश के वज़ीर ख़ारजा, अफ्रीकी ताउन और मराकशी तारिकीन वतन नासिर बोडेता से भी अलहदा मुलाकात की। मुलाकातों के अख्तिताम पर दोनों जानिब से तहाइफ का तबादला हुआ। वज़ीर दिफा ने मोहम्मद पंजुम के मज़ार का दौरा भी किया। उन्होंने फातिहा ख़ानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। इन मुलाकातों और सरगर्मियों के दौरान दोनों फरीकैन को दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करने का मौका मिला। इस्तेहकाम और ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। शोबा तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कॉन्वोकेशन से खिताब। उन्होंने कामयाब ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिन्हा मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन दर्जगाह है, चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। Families present here today, this moment belongs to you as well. Your sacrifices, prayers, and patience have shaped these graduates. To the faculty and administrators of Jinnah Sindh Medical University, you have not merely taught courses, you have shaped character. The nation salutes your dedication. And graduates, there will be days when the system frustrates you. There will be moments of exhaustion, doubt, and loss. But there will also be moments when a life is saved. कराची से टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन के आला हुक्काम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत जारी कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने शहर में मौजूद तमाम 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फराहम करने की हिदायत की है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर लाइनों के जरिए फराहम करने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है। वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका है। मेयर कराची के मुताबिक नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं किए जाएंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। शहर में पानी की कमी को मुतबादिल दिनों में हर इलाके को पानी फराहम करके पूरा किया जाएगा।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून की सऊदी सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक सऊदी अरब के दोस्ताना ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। डिजिटल मीडिया के शोबे में होने वाली पेशरफ्त और मीडिया रुझानात पर भी गुफ्तगू की गई। फरीकैन ने डिजिटल मीडिया और अबलाग के शोबे में मुसलसल राब्ते और ताउन के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ज़रई शोबे में जदीद और किसान दोस्त इस्लाहात के तहत एग्रीकल्चरल लैब ऑन व्हील मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। इब्तदाई मरहले में 15 अजला में मोबाइल एग्रीकल्चरल लेबॉर्ट्रियाँ कायम की जा रही हैं। वज़ीर आला कहती हैं कि किसान दोस्त इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। लाहौर से हमीद गोराइया की रिपोर्ट देखिए। पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक मोबाइल लेबॉर्ट्रियों के जरिए जमीन की जरखेजी, पानी के मयार और फसलों की जरूरियात का दुरुस्त तयन मुमकिन होगा और पैदावार में इजाफा होगा। तमाम मोबाइल लैब्स की मॉनिटरिंग के लिए एक मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है ताकि खदमात के मयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि ज़रई तोसी खदमात को मजीद मौसर बनाने के लिए पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर किसान मराकज़ भी कायम किए जाएंगे, जहाँ डाटा कॉल सेंटर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, जदीद डिजिटल आलात और दीगर सहूलियात दस्तयाब होगी। वज़ीर आला ने कहा किसान दोस्त इक़दामात से रवां सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड, ट्रैक्टर स्कीम समेत दर्जनों तरक्याती मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद जारी है, जिससे ज़रई शोबा मजबूत और किसान खुशहाल होगा। हमीद गोराया, न्यूज़ 1 लाहौर। शेख अब्दुल रऊफ एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। जिला कचहरी में वकला कल अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट करेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से कत्ल की मजम्मत की गई। बार एलामी के मुताबिक अरबाब इख्तियार कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। वकला की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। पुलिस और इदारे वकला के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आते हैं। वकला के कत्ल पर खामोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आपको बताएं कि बनू के थाना हुवैत की हुदूद में अमन कमेटी मेंबरान पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया और इस फायरिंग से अमन कमेटी के 4 मेंबरान जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाक़या गुलबदीन लंडी डाक में पेश आया। मरने वालों में बाप और बेटा भी शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान और जापान के दरमियान ग्रांट मुआहदे पर दस्तखत हो गए। जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 2.91 अरब जापानी येन ग्रांट देगी। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुताबिक जापानी हुकूमत जनूबी पंजाब में बच्चों की सेहत की देखभाल के लिए फंड्स फराहम करेगी। मंसूबे के तहत चिल्ड्रन अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मुल्तान को तिब्बी सहूलियात के लिहाज से अपग्रेड किया जाएगा। ICH मुल्तान रीजन का सबसे बड़ा चाइल्ड केयर अस्पताल है। इसमें सहूलियात की फराहमी को मजीद मौसर बनाया जाएगा। जापानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। दोस्ताना ताल्लुकात और दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाएगा।